It's not live at the moment. Maybe it can be No, shared when. now it's live. Now it's live. Thank you. So we can start recording also now. अस्सलाम वालेकुम। प्लीज एक मरतबा दोबारा कंफर्म कर लें मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है। Yes, we can hear you. Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of Karachi Branch Committee of PIPFA. My name is Mohammad Tayyab. I am member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, member of PIPFA, CPD coordinator of Karachi Branch Committee of PIPFA, and president of CA Toastmasters Club Karachi. बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती। हमने बहुत जगह पे अप्लाई भी किया हुआ है मगर कहीं से रिस्पांस नहीं आता। अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बाद कोई कॉल नहीं आती। तो मेरी जो उस पर ऑब्जर्वेशन है कि वो है कि कैंडिडेट्स डोंट हैव स्किल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स। एक स्किल्स को हम बोलते हैं कि हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, एंड अदर इज सॉफ्ट स्किल्स। एक रिसर्च है वो ये कहती है कि आपकी जो जॉब सक्सेस पे जो टेक्निकल स्किल्स का रोल है वो सिर्फ 25% है। बाकी 75% जो है वो आपका सॉफ्ट स्किल्स का रोल है। मगर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारी स्कूलिंग हो गई, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स पे इतना फोकस नहीं होता, जिस वजह से लोगों को आगे करियर में मुश्किलात होती है। मैं तकरीबन पिछले 5 इयर्स से इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रहा हूँ, लोगों की सीवीज़ देख रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स नज़र आती हैं। जैसे लोगों को प्रॉपर सीवी बनाना नहीं आती, या ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक बंदे की सीवी उठाई, उसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिख लिया, बाकी एग्जिट रहने दिया। इसी तरह वो जब इंटरव्यू पे आते हैं तो जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि किस, अगर कुछ आंसर आता है तो किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए, नहीं आता तो फिर किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी दोनों स्किल्स चेक कर रहा होता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी चेक कर रहा होता है और साथ ही साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी चेक कर रहा होता है। तो उसको देखते हुए कराची ब्रांच कमेटी ने ये डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम सॉफ्ट स्किल्स पे कोई वेबिनार रखेंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं वकार मंजूर के कि उन्होंने अपना एक टाइम दिया। तो अब विदाउट डिले मैं वकार मंजूर को इनवाइट करना चाहूँगा। ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ही इज़ आल्सो फाउंडिंग मेंबर and VP membership of CA Toastmasters Club Karachi, founding member of Ocean Hub Toastmasters Club, and currently he is working at HubCo. So please welcome Mr. Waqar Manzoor. Thank you very much, Tayyab. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you, and thanks for joining the session. Just like Tayyab said now, I have been taking interview for like more than 6 or 7 years, and I have been in professional world for over 10 years. So I have been giving interview in that time as well. What I have seen lacking in the student that or fresh graduates that they do not prepare for the interview. And honestly speaking, many times when we are conducting interview, we are literally sad on the thing that why is interview is performing so bad, even though he is qualified, he is qualified from such a good place, but why is he doing so or she doing so? Considering that we have designed this webinar to help you to achieve those small things which you already know, but to highlight that and to polish that. Just like Tayyab said, that in our university, we learn the technical skills, we learn the skills to do the job, but we do not learn the skill to get the job. And that is very alarming. So, the first and foremost important point for searching any job is positive attitude. So, how I have defined this webinar or designed this webinar is that I have split it in 10 small pieces. If we work on each of the area, we can have much better chance to get a job. I want to make clear one thing, that this webinar does not necessarily guarantee you that you will get a job, but I can assure you
after attending this webinar, your chances of getting a job or getting interview would be much more than the previous before attending this webinar. And this will not only help in you getting the job, but also in your overall career and overall life. So first thing and the foremost important thing is positive attitude. Why I am saying that? I have been often listening to our students or graduates and colleagues that they usually say, yeah, we don't get job, or you cannot get job without reference. You cannot get job without money. तो अगर आपके जहन में यही प्रॉब्लम रहेगा कि आप यही सोचते रहोगे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप रेफरेंस नहीं देते, आप मनी इस्तेमाल नहीं करते, आपकी कोई जान पहचान ना हो, you will have this problem that you will not get the job. This is similar to like in our many professional qualification, you hear students saying कि यार ये ICAP तो पास ही नहीं करता, या ये लोग तो पास ही नहीं करते. And if you keep on thinking that you pass ही नहीं करते, trust me, you will not be able to pass, because when you program your mind कि यार ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, so you cannot achieve that. So first and the foremost important thing is positive attitude, and this point will apply to rest of 9 points as well. Honestly speaking, अगर हम इंटरव्यू टेक्निक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शायद उसके लिए अगर हम एक फुल डे सेशन भी करें तो वो भी कम हो. There are so many things to highlight in that, but we have just 1 hour and 30 minutes. So what I will be doing, I will be highlighting the small things which you can write down, which you can further research, and which can help you if you work on that. So you need to work on those things. First thing is positive attitude, and you have to positive. Even though you get a call, you are not selected for the job, you should have positive attitude. You apply for the job, you do not get called, you should have positive attitude. You should have believe in yourself, trust in yourself that I can do it, I can get it. That is the first point. Now, while looking at the CV for the interview, आपको बहुत बार अफसोस हो रहा होता है कि यार इसने ये CV बनाई है, I cannot see this person. What I can see is his CV or his CV. ठीक है? और इसके CV में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उसके CV में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके CV में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आ रहा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू लुक एट द CV, आपके रिक्रूटर जो है उसके पास 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होता इनिशियली टू स्क्रीन अ CV. वो यूजुअली 10 सेकंड देखते हैं और उसमें से इस किस्म की चीजें दिखती है, they simply skip out the CV out of rest of the CVs. So at least spend a considerable time on your CV, or not only on making that, but also get it reviewed from your senior colleagues, your senior mentors, your senior family members, your senior friends, no matter whoever they are. Make a good CV, get it reviewed, and keep it updating. I will cover the small areas in CV which I have seen or which you can cover. Then you can further research on that and make your CV outstanding so that when the recruiter look at your CV, he cannot skip on that CV. आप अपनी CV को खुद देख के बोलो कि यार इस CV को देख के recruiter at least मुझे call जरूर करेगा. मेरी qualification को देखते हुए I will get a call for interview. Then my luck will depend how will I perform in interview. But the first and the foremost important thing is that you have a good CV so that the recruiter call you. So, आप इनिशियली आप इसमें अपना बैकग्राउंड दे देते हैं, नाम दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ईमेल एड्रेस दे देते हैं. यू कैन ऐड योर पिक्चर एज वेल. देन ऐड योर पॉजिटिव हाइलाइट्स ऑन दैट CV. नेवर टेल अ लाई ऑन योर CV. अपनी CV पे कभी भी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो आप इंटरव्यू अर्ली पार्ट ऑफ योर जॉब दैट विल बी हाईलाइटेड एंड दैट इज नॉट एथिकल एज वेल. You always have to be truthful in your CV, but highlight the positive areas in your CV. Like, for example, if your positive area is your education, keep it in first part. If your positive area is your experience, keep it in first part. All right. And keep it in chronological order with the latest qualification or latest job first. For example, if you have done PIFA, so you will write first that I have done PIFA, qualified, or in which papers have how many papers have been qualified. Then you can write if you have done graduation, you have done intermediate or A levels, O levels, or metric, whatever it be. तो आप उसको साथ साथ लिखेंगे. Chronological order में इसलिए जरूरी. I have seen के students write about their graduation and then about their metric and then about their intermediate. So you see the CV and you say that if he cannot make CV in chronological order, so how can I expect that he would be doing work in a good way?
Simultaneously, your experience should be in chronological order with the first job first. And when I say highlight the positive area, for example, if you have got outstanding percentage or GPA in your university, if you have got outstanding percentage in intermediate or inter, mention that in your CV. But if you do not get a good percentage, so there is no need or compulsion to mention your percentage on each CV. Like if you get 45% in intermediate, you can simply write that I have passed the intermediate in this particular year. So that's very important to highlight the positive area. If the interviewer asks what was your percentage, you will tell the truth. But at least that question will arise during the interview when you have chance to impress with your other skills as well. Simultaneously, tell your interest in a good way. Like I see hobby, mein, what do you do on hobby? I watch movies. I use social media. So, all right, you may be doing it, but look, think about yourself. There would be something good which you would be doing as well. For example, reading books, playing some good sports, physical sports as well. So, but never mention lie. Like I see people saying that our hobby is to read books. But when you ask them what books do you read or what poetry do you read, so they have no answer to that. So never tell a lie, but do mention some good hobbies as well. And make your CV in one page. At least when you are early in your career or you are fresh graduate, your CV should not be more than of one page for God's sake, I say. Because I see a student has done only graduation, but his CV is of 3 pages. And when you see those 3 pages, 70% of those pages are blank. So actually what you are asking your recruiter, you are making his life difficult. जब आप recruiter की जिंदगी को मुश्किल बनाओगे, तो there is are less chances कि you will be called for the interview. अभी देखिए मेरे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया है. अभी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, देन वी आर मेकिंग अ गुड सीवी. गुड सीवी में हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं विच आर आपकी सीवी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, कोशिश करें मैक्सिमम 1 पेज की हो. आपकी सीवी में जो आपकी हाइलाइट्स हैं, पॉजिटिव एरिया है, दैट शुड बी हाईलाइटेड. आपको जो बुरे काम करते हैं, आपकी अगर परसेंटेज बुरी है, आपको चीजें क्वालिफाई करने में ज्यादा टाइम लग गया है, यू डू नॉट नीड टू मेंशन दैट. आई एम नॉट सेइंग टू लाई, बट डोंट मेंशन दैट. वंस यू हैव अ गुड सीवी, पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी है, जो सबसे पहले आएगी, उससे वेल ड्राफ्टेड होना जरूरी है और वो गूगल से कॉपी पेस्टेड ना हो. व्हाट वी सी इज सेम आपकी जो है पर्सनल स्टेटमेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर सेवरल पीपल. मतलब वो सैकड़ों बंदों की एग्जैक्टली सेम गूगल से कॉपी पेस्ट होती है. व्हाट यू फील लाइक यार, अगर ये बंदा अपनी सीवी पे एफर्ट नहीं कर सकता, इफ ही कैन नॉट स्पेंड टाइम ऑन हिज सीवी, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट हिम टू डू गुड वर्क. तो वो चीज जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपकी सीवी है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी हो और वो उसमें आप वो हाईलाइट भी करें कि एट द सेम टाइम कि आप अपने गोल्स पूरे कर रहे होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे होंगे, अपने करियर एस्पिरेशन पूरे कर रहे होंगे, बट व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन. Like I am motivated individual who would be love to do this job, who is always who like to take challenges, something like that, where you can sell yourself. Like your CV, the interviewer or recruiter cannot see you. Interviewer or recruiter can see only your CV. So what you have to do is to make your CV in such a way that if you see your own CV or if you ask some of your friends that look at my CV, will you call this CV for the interview? When you make a good CV, then the time comes to apply for the job. And for applying the job is much easier today as compared to when you compare 20 or 30 years back. 20 और 30 साल पहले आपको ऑफिसेज जाना पड़ता था, आपको फिजिकली सीवी जाके देने जानी पड़ती थी, आपको 2-2, 3-3 घंटे ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी, आपको ऑफिसेज काफी बार जाके पूछना पड़ता था कि क्या जॉब अवेलेबल है या नहीं है. But if we are talking about today, you in digital transformation, in digital media, information is so easily available that if you do not take advantage of it, then you can never take advantage of this digital transformation. आपके पास इस वक्त जॉब्स जो मौजूद हैं, आपके पास लिंक्डइन मौजूद है, आपके पास दूसरी वेबसाइट लाइक रोजी पीके एंड मेनी अदर, इवन व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे मौजूद हैं जॉब्स के, जो कि आपके पास व्हाट्सएप पे मौजूद होते हैं. यू कैन बी पार्ट ऑफ दोस ग्रुप जहां पे आपको सिर्फ जॉब्स ही मिल रही होती है. Try to make your presence on LinkedIn as well, so that people or prospective hire recruiter can see you, can find you from LinkedIn as well. Keep applying for the job. LinkedIn पे ये नहीं करना कि यार हमें जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाना, हमने नीचे लिख दिया कि I am interested, I am interested. Trust me, you do not get call for them from them except from the spam. स्पैम आपको कॉल कर सकता है अगर वो आपसे पैसे चोरी करना चाह रहा होगा. अदरवाइज जो आपको रिक्रूटर देखेगा यार I am interested लिखा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में. I have seen very good qualified people, professional qualified people,
कि बंदा लिख रहा है आगे से कि आई नीड अ जॉब, आई हैव डन दिस, और नीचे बंदा लिख रहा है जॉब ढूंढने के लिए आई एम इंटरेस्टेड. सो एटलीस्ट प्लीज डोंट डू सच ब्लंडर्स ऑन लिंक्डइन. स्पेंड योर टाइम ऑन जॉब फाइंडिंग. तो आपको उसके ऊपर ढूंढना है और फिर अप्लाई करना शुरू कर देना है. What's the next thing come? You have positive attitude, good CV. मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि यार you are jobless, are you applying for job? वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वकार भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा. So I asked that how many places have you applied? He says I have applied at 3 places, या मैंने 7 जगह अप्लाई किया था, किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया, अब तो मेरा दिल ही उदास हो गया. So this is not the way to get the job. I tell you about myself. I am a qualified chartered accountant. I have done MBA as well. Usually आप जब CA पास करते हो, you feel like now you have done everything in your world and you will be easily be getting job as well. I applied for more than 100 places before getting the first call for interview. And my usual routine was used to be कि आप रोजाना 8-10 जगह आपने अप्लाई करना है जब तक आपके पास जॉब नहीं है. तो अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि यार मैंने 10 जगह अप्लाई किया था, कोई जॉब ही नहीं आई है, और अब तो जो है जब तक रेफरेंस नहीं होगा, जब तक मेरा मामे का, चाचे का या भाई का, भतीजे का लड़का नहीं होगा वहां पे, मुझे जॉब नहीं मिल सकती. तो जब तक मैं ये सोचूंगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो मुझे अप्लाई करते रहना है. देखो मुझे रिजल्ट पे नहीं जाना कि कॉल आती नहीं आती. जब कॉल आएगी, विच वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन, तो हमें क्या करना है हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जब तक मुझे कॉल्स नहीं आती हैं, जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो जाती, मुझे अप्लाई करना है. मुझे जो जॉब मिलती है, अच्छा एक और बड़े होते हैं कि यार मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूंगा, मैं इस जगह अप्लाई करूंगा, मतलब वी थिंक यार हमें जो है ना डायरेक्ट मल्टीनेशनल से नीचे तो काम ही नहीं करना है ना, हमें डायरेक्ट वहीं पे ही जाना है. सो डोंट kill your scope your own self. Keep your scope open. Apply everywhere. When you have interview, you learn a lot. जो हम लेटर पार्ट में कवर कर रहे होंगे, आप इंटरव्यू देने से बहुत ज्यादा सीखते हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई गेव द फर्स्ट इंटरव्यू एंड व्हेन आई गेव द 10th इंटरव्यू, देयर वाज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन माय ओन सेल्फ. जब मैं पहला इंटरव्यू देके आया था तो मैं सोच रहा था यार मैंने तो ऐसा अच्छा परफॉर्म किया है कि इससे अच्छा कोई क्या परफॉर्म करेगा और कंफर्म मुझे आएगी जॉब कॉल. लेकिन जब मैंने 10वां इंटरव्यू दिया था तो आई न्यू कि यार मैं फर्स्ट इंटरव्यू में क्या ब्लंडर्स करके आया, व्हाट वर माय ब्लंडर्स, और अगर उसने मुझे बुरा भला कुछ नहीं कहा सो दैट्स गुड ऑन हिम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अप्लाई करो और हर जगह इंटरव्यू देने जाओ विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड, सो दैट आप उससे बहुत ज्यादा सीखोगे. सो अपना टारगेट बनाएं, एटलीस्ट व्हेन यू आर जॉब सर्चिंग योर जॉब, इवन यू आर जॉबलेस और व्हेन यू आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर योर जॉब टू मूव फ्रॉम अ जॉब, कि रोजाना मुझे एटलीस्ट इतनी जॉब्स अप्लाई करनी है, 5 जॉब 10 जॉब, जहां इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी मुझे जाना है. इन दिस पेंडेमिक टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इफ समथिंग इज डिफिकल्ट दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट. नॉट दैट कि आप ये कहो कि यार अब जॉब मिलना मुश्किल है तो मैं अप्लाई करना ही छोड़ दूं. दिस इज नॉट द वे टू अचीव समथिंग. यू व्हाट यू शुड बी और यू have been doing, yeah, in this time finding a job is more difficult, so I should be spending more time to get the job. All right, so now आप apply करना शुरू कर दिया. अब for example आपको आ जाती है call for interview. The fourth point is call for interview. हमेशा call for interview में आपने positive attitude show करें. I have seen कि आप fresh graduates को कॉल कर रहे होते हो, आप पूछते हैं कि यार will you be available on this time, and the person reply कि I will see if my calendar is available, I will respond you, I cannot confirm you. Try to make yourself available. See, the recruiter has hundreds of CVs, and now you have only one call. Maybe if you are at that senior stage of your career, you may be doing that, you have important meeting or something like that. But doing that in your early part of career reflects very bad or non-serious attitude from the part of the prospective candidate. So उसको ख्याल रखें कि make yourself available. When you get the call और आपने अपने आप को उसमें अवेलेबल कर दिया, अब आपने क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू आस्क हु विल बी योर इंटरव्यूअर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ यू नो दैट योर इंटरव्यूअर is from HR, your preparation would be different. If you know your interviewer is from maybe technical area, internal audit, finance, supply chain, marketing, some other departments, so your preparation would be different. So try to ask that who will be my interviewer. Will it be a panel interview? Will it be a सिंगल इंटरव्यू? जितनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी दैट वुड बी बेटर एंड गुड. देन आपने जब आपको इंटरव्यू का पता चल गया है, इंटरव्यू किस कंपनी है, डू सम रिसर्च, स्पेंड टाइम ऑन इट. सी दैट इज द टाइम टू प्रूव दैट यू आर सुपर हीरो. दैट इज द टाइम टू प्रूव दैट यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज सेलेक्टेड फॉर द जॉब.
सो रिसर्च करें, जिस कंपनी के बारे में, उस कंपनी की वेबसाइट को जाके देखें, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें। अगर वो आपकी जो है कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसकी अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, सो लुक एट सिमिलर कंपनीज ऑफ दैट इंडस्ट्री। अगर आप सीमेंट में देख रहे हैं कोई ऐसी कंपनी है जिसकी अपनी वेबसाइट नहीं है, तो उसकी सिमिलर कंपनीज को आप जाके देखें, उनकी वेबसाइट, उसकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसके नाम को गूगल पे लिखें और उसके नाम से रिलेटेड न्यूज देखें। क्योंकि रिसेंट न्यूज तो नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन इजीली फाइंड ऑन इंटरनेट। होता क्या है, इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू से पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, and this interviewer you are sometimes replying like I know your company makes electricity, like something. So like if I am asked that question, I would be trying that my opinion or my thinking should come at the first, so that interviewer know कि he is the best candidate, rather than कि आप इस तरह सोच सोच के उस टाइम पे बता रहे हो। तो रिसर्च करें, कंपनी की वेबसाइट देखें, उससे रिलेटेड न्यूज देखें, उससे रिलेटेड चीजें सर्च करें, सो डैट जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आपको ये चीज पता हो कि आपकी जो आप सीरियस हैं इस जॉब के लिए। द इंटरव्यू व्यूअर नो कि आप सीरियस हैं इस जॉब के लिए, आप इस पे रिसर्च करके आए हुए हैं, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग इज, अब देखिए आपके इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं यूजुअली, जो हम के आगे इसमें भी कवर करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। कैसे, पहले पार्ट में वो आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यूजुअली व्हाट हैपेंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड पार्ट में आपसे होता है जहां वो आपसे कहता है कि टेक्निकल एरियाज, अब उसके पास ऑप्शन है वो आपकी सीवी पे चला जाए या कोई टेक्निकल एरिया में चला जाए। थर्ड पार्ट वो होता है जहां वो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग और समथिंग लाइक दैट। तो अब आपने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ली है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने इंटरव्यू से की, आज कॉल है ये आपको कि परसों आपका इंटरव्यू है, आपने प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दी। योर प्रिपरेशन आल्सो इंक्लूड, अगर आपको फिजिकली उस जगह पे जाना है तो आपने उधर का गूगल मैप देख लिया है। अगर आप फिजिकली उस जगह पे होके भी आ सकते हो रास्ता, तो इट्स गुड। आप गाड़ी कहाँ पार्क करोगे आपको आइडिया है, वो सारी आपने प्लानिंग कर ली। आप कौन सी शर्ट पहन के जाओगे, आप कौन से सूट पहन के जाओगे, कौन से कपड़े, दैट यू शुड नो। और वो प्रेस हैं, वो तैयार हैं, दैट आर अवेलेबल, यू शुड आल्सो वर्क ऑन दैट। आई हैव सीन इंटरव्यू के ऑन द लास्ट डे, जब वो इंटरव्यू पे पहुंच चुके हैं, दे गेट टू नो आई कैन नॉट क्लोज माय टाई। सो अब वो इंटरव्यू में जा रहे हैं विद ओपन टाई। सो अगर आप ये चीजें पहले से सर्च नहीं करोगे, दिस इज गोइंग टू बी गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। तो आपने ये सब रिसर्च, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, आपने उसकी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है, आपने उससे रिलेटेड न्यूज देखनी है, आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, आपने उसकी वेबसाइट देखनी है, आपने लिंक्डइन पे जाके वो बंदों को सर्च करना है जो आपके इंटरव्यू लेंगे। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई नो कि हेड ऑफ ऑडिट वुड बी टेकिंग माय इंटरव्यू, or CEO would be taking my interview, or head of HR, or someone from HR would be taking my interview, it's important that I look at those people on LinkedIn as well and know their profile as well. So what I usually do कि आप जाके देखते हो कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कहाँ कहाँ देखा है। देखो नाउ आपकी बेस्ट सीवी है, यू हैव गॉटन कॉल फॉर इंटरव्यू, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू सम रिसर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर रिसर्चिंग, आप उस बंदे को, जब मैंने आज के आप ये भी पूछोगे कि यार कौन इंटरव्यू ले रहा है, तो आप उस बंदे को भी जाके रिसर्च करोगे, यार इसका कहाँ कहाँ इस एक्सपीरियंस है। व्हाट यूजुअली हैपेंस, इफ यू सी समवन इज फ्रॉम सीमेंट सेक्टर, तो वो सीमेंट सेक्टर में जो इश्यूज आते हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछेगा। इफ समवन हैज एक्सपीरियंस ऑफ एविएशन सेक्टर, इफ समवन हैज एक्सपीरियंस ऑफ पावर सेक्टर, व्हाटएवर द सेक्टर भी, तो आप थोड़ी थोड़ी रिसर्च उस बारे में भी कर ले, एटलीस्ट यू नो बेसिक्स। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका ये बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ द करियर होगा, आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके, बट एटलीस्ट अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो you would have better chances to perform better in that interview in comparison to those who have not done this research. आप जब एक इंटरव्यू के लिए 20 बंदों को बुला रहे हैं, तो आपको जो फाइनल कॉल करनी है, हायर करना है, वो किसी एक बंदे को करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट वन पर्सन इज गोइंग टू बी मी। आपने कॉल आने के लिए एफर्ट कर दी थी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, कंप्लीटली अप्लाइंग एंड अपडेटिंग योर सीवी। सीवी अपडेटिंग में ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी यू मे मॉडिफाई योर सीवी विद सम रिस्पेक्ट। आप यहाँ पे बोलो कि यार वुड बी कंफर्टेबल विद मोबिलिटी। अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी आप इसे थोड़ा सा सेपरेट पर्सपेक्टिव से रखें। आप अगर इंटरनल ऑडिट में, फाइनेंस में, सप्लाई चेन में, तो आप कवर लेटर को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकते हैं। जो आप ईमेल का डाटा लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं,
उसमें थोड़ी सी 2-3 लाइनें अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज आप यूजुअली यू सी प्लीज PFA और प्लीज फाइंड अटैच माय सीवी, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार जो कैंडिडेट है एटलीस्ट वो 2-3 लाइन ईमेल भेजे कि वहां से उस ईमेल की पॉजिटिव लाइन से मैं उसकी सीवी को खोलूं, देन विद पॉजिटिव सीवी व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस मैं उसको कॉल करूं, और अब जब कॉल हो गई है आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब। तो अब मैंने मुझे मेक श्योर करना है कि उसके लिए मुझे क्या करना है, रिसर्च करनी है, मुझे कंपनी के बारे में पढ़ लिया, मैंने उसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, मैंने उस बंदे के बारे में पढ़ लिया कि उस बंदे ने कहाँ कहाँ काम किया। देखो होता क्या है, जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ना और आप इंटरव्यू में बैठे हुए होते हो, यू आर मच मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन। जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्या होगा कि आप थोड़े से डरे हुए होंगे, आपको ये होगा कुछ भी ऐसा आ सकता है जिससे हो सकता है मुझे उसका जवाब ना आता हो, आई मे डू समथिंग रॉन्ग। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू हैव डन रिसर्च, you are definitely going to perform better in that interview. I hope I am audible and things are understandable. अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, if you can understand, so please show some thumbs up or maybe clapping or something like that from the reaction section so that I get to know that you are getting what I am saying. So moving forward, someone asked, are you CA? Yes, I am CA. All right. So moving forward, अब आपने इंटरव्यू से पहले पूरी रिसर्च कर ली है और आप ये कह रहे हैं कि अब आप इंटरव्यू के लिए का दिन आ गया है, इंटरव्यू का दिन आ गया, उससे पहले आप कंपनी के बारे में भी रिसर्च कर चुके हैं, आप जो है उससे पहले उसकी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, उसकी लोकेशन के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिसर्च कर चुके हैं। अब उस दिन आपने क्या करना है कि उस दिन आपने टाइम से पहले तैयार होना है, आपने पूरा शेड्यूल करना है। फॉर एग्जाम्पल माई इंटरव्यू इज एट 2 PM, तो उस जगह पे मुझे 1:30 PM पहुंच जाना है, और 1:30 PM मेरी ट्रैवलिंग टाइम जो है अगर 45 मिनट्स है तो मैं घर से 12:45 पे निकल जाऊंगा। फॉर 12:45 मुझे तैयार होने में 45 मिनट्स लगेंगे, तो मैं 12 बजे तक मैं नहा चुका हूँगा। अच्छा, मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, हो सकता है मेरा इंटरव्यू 3 या 4 बजे हो रहा हो, लेट हो, मुझे वहाँ वेट करना पड़े, मुझे भूख लग रही होगी तो मैं कुछ खा के जाऊंगा ताकि मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ जब मैं वहां पे बैठता हूँ। I have to make myself comfortable during interview. That's very important. इसको हम अभी later part में cover कर रहे होंगे. But I have to plan these small things. That's very bad impression if you see कि आप जो हो उस दिन understandable नहीं हो, आप उस दिन लेट पहुंच रहे हो। आप अगर लेट पहुंचोगे तो इंटरव्यूअर को जो आपने सारी एफर्ट की थी वो तमाम जाया हो जाएगी। So that's very important. आप टाइम पे पहुंचो। डिजिटल इंटरव्यू आजकल मोस्टली हो रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कॉलिंग यू फॉर दैट इंटरव्यू, और वो आपसे कह रही हैं कि हम स्काइप, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम समथिंग लाइक दैट पे करेंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यू, व्हाट यू हैव टू डू, पहले से आपने देखना है मुझे घर में किस जगह बैठना है जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लाइक टू डू दिस सेशन आई एक्चुअली प्लान दैट आई हैव टू सिट एट दिस प्लेस, ऑलराइट। सो आपको किस जगह बैठना है जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यू हैव टू चेक दैट योर इंटरनेट कनेक्शन आप should be better, all right, your internet connection में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि बार बार यही हो रहा हो या रिकनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। so you have to do work on that as well. what you have to see कि आपके घर में भी आपने ये नहीं करना कि मैंने टी शर्ट पहन के बैठ गया, यार मैं तो घर में ही हूँ ना, इट्स कैजुअल। so you have to have formal dressing in your interview. you have to turn on your video, ये ना हो कि आपका इंटरव्यूअर ने वीडियो टर्न ऑन की भी और आपने वीडियो अपनी टर्न ऑफ की भी है। so your video should be turned on, and what you have to do or you must do, like for this session as well, I tell you, and for whenever I have interview as well, even when I give interview, what I do this session for my own self as well, all right, कि मैं इस जगह पे बैठ रहा हूँ तो मेरे कैमरे का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, मेरा कितना जिस्म का बॉडी का पोस्चर दिख रहा है, क्या मेरा सर वीडियो से ऊपर तो नहीं जा रहा, क्या मेरे हाथ बाहर तो नहीं जा रहे, मुझे कितने एक्सप्रेशन यूज करने होंगे, मेरी बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा नीचे भी तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ बिल्कुल ही ना दिख रहे हो। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी है, एंड वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग, क्योंकि हम लोग आदि हैं बीइंग इन पाकिस्तान इंटरव्यू देने के फिजिकली, लेकिन जब आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यू देना पड़ रहा है, आपको इस वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट टीम और सम सॉफ्टवेयर लाइक दैट के ऊपर इंटरव्यू देना पड़ रहा है, सो यू शुड शो योरसेल्फ प्रेजेंटेबल ऑन दैट एज वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके ऊपर यूं आके बैठे हुए हो, फॉर एग्जांपल, या आप आके बिल्कुल यूं बैठे हुए हो, तो अगर मैं आपसे इस तरह बात करने लग जाऊं तो आपका इंटरेस्ट थोड़ी देर में ये हो जाएगा कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, हालांकि इधर मैं आपको कुछ सिखाने आओ। कंसीडर द इंटरव्यूअर, जब वो सोचेगा कि यार एक बंदा मुझसे इस तरह बैठ के बात कर रहा है,
या इस तरह बिल्कुल ही कैमरे में आया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? एंड ही वुड बी सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट। वो आपको बहुत जल्दी बोलेगा ठीक है, वी विल लेट यू नो। तो आपने देखना है कि आपका कनेक्शन सही हो, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, किसी और से बात करके देखो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। टॉक विद योर फ्रेंड, टॉक विद समवन, आस्क हिम इफ आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस में इको तो नहीं हो रहा, मेरी वीडियो सही आ रही है, मेरा बैकग्राउंड सही है। मेक श्योर कोई ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको डिस्टर्ब करने ना आ रहा हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो आपने सारी रिसर्च की हुई है, अगर आप लैपटॉप के ऊपर भी दे रहे हैं इंटरव्यू तो भी आपने रिसर्च की हुई हो पूरी कि हाउ यू वुड लुक ऑन दैट। फिजिकली जा रहे हैं, अब आप उधर टाइम पे पहुंच गए हैं, टाइम पे आपने पूछ लिया, आप जगह पे पहुंच गए हैं, जिस वक्त आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। एंड हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल? अगर आप इफ यू आर thirsty, just drink water or ask for water, that from where can I get the water, simply they will tell you from where you can get the water, they will bring water for you. If you want to go to washroom, use that, get fresh. If you think you have commuted on bike और आपको डस्ट लग गई, कुछ हो गई, तो get fresh from washroom as well. Apply some good scent, fragrance you should apply, but ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो कि वो हर किसी को आपके एटमॉस्फेयर में इफेक्ट कर रही हो, या बिल्कुल ही ना हो कि आप सूंघे नहीं, आप स्मेल कर रहे हो। Apply some good fragrance, have some good dressing. If you know the organization used to wear tie, the employees in organization used to wear tie, do wear tie as well. It's good to have suit for female, have formal dressing, avoid dark color. Sometimes you see कि person is wearing red color, or I have seen that interview में जो लड़का आया, he is wearing jeans and hood. So what do you feel about that candidate? यार ये jeans और hood आया, so you simply ask his name, what do you do? Okay, thank you very much, we will let you know. So when you get a chance for interview, make yourself the best candidate for that interview, all right? So आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, एंड आपने उस जगह पे पहुंच के अपने आप को फ्रेश और बिल्कुल कंफर्टेबल लेना है। काफी बार क्या होता है, आप लेट हो जाते हो जब आपके पास टाइम नहीं है, यू रीच देयर बाय रनिंग, एंड व्हेन यू एंटर द रूम यू आर एक्चुअली, आप सांस इतनी तेज से ले रहे हो तो पर्सन सेज लाइक इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इजीली कंफर्टेबल उस पोजीशन पे पहुंच जाओ। आप बैठो वहां पे 15-20 मिनट पहले, आप उसमें पानी पी लो, यू गो टू वॉशरूम इफ यू नीड, एंड देन यू आर फ्रेश। जब आप उस रूम में जा रहे हो तो आप बिल्कुल फ्रेश हो। What one more thing you can do is हाँ, what one more thing you can do is कि जिस टाइम आप वेट कर रहे हो, देखो इंटरव्यू में मोस्टली ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आप उस टाइम उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, डू सम रिसर्च अबाउट द कंपनी एज वेल। अगेन ठीक है, आप पहले कर चुके हो, उस वक्त अगर आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप बैठ के बोर होते रहो, या आपके पास क्या ऑप्शन है, यू एक्चुअली कॉल सम फ्रेंड एंड disturb the receptionist and other person as well and see that he is non serious. Or what you can do कि आप जो है सर्फिंग कर रहे हैं गूगल पे, अब आप क्या कर रहे हैं, आप फेसबुक पे सर्फिंग कर रहे हैं, और एकदम आप जब जाएंगे उस सर्फिंग से उस इंटरव्यू के रूम में, तो एकदम आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज होगा। अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि यार मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, और फिर मैं एकदम चला गया, मैं अच्छा यार इधर ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, चाइना में ये हो रहा है, और मैं इंटरव्यू में गया तो मैं जो सारा पढ़ के आया हुआ था वो एकदम मेरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिटेल्ड स्टडी करें जिस तरह हम लास्ट मोमेंट में करते हैं, बट व्हाट यू शुड डू, just open the website of the company, just look at your CV again, all right? So look at your CV again, और आपको पता हो कि what is written on your CV, because what happens sometimes interviewer asks, you have written in this CV, and then you ask, where did I have written this, where have I written this on my CV? So that's important कि आप अपनी CV एंड टाइम में एक बार दोबारा से स्किम कर लें, आपने वेबसाइट एक बार दोबारा से देख ली, तो चीजें आपके जहन में क्लिक हो जाएंगी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। नाउ यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, आप रूम में इंटर हो रहे हैं। So, अगर दो तरीके होते हैं, या तो वो आपको पहले बिठा देते हैं देन दे कम, तो आप फिर तो अगर रूम में कोई भी नहीं है, यू कैन सिंपली सिट इन कॉन्फ्रेंस रूम एंड वेट फॉर द इंटरव्यूअर। अगर इंटरव्यूअर पहले से मौजूद है, नॉक द डोर, आस्क फॉर द परमिशन, एंटर एंड सिट ऑन द चेयर। Usually a firm shake hand is recommended, but in this current pandemic era, it's very important that you do not shake hand at the moment, show that you are taking precautions, wear mask as well in interview. अगर अब आपको इस वक्त कहीं बुलाया जाएगा, मोस्टली कुछ जगहों पे so ये भी लिखा हुआ होगा साथ में that wearing mask is compulsory. So wear mask, show that कि you are taking precaution in such pandemic as well. आप बैठ गए हैं, ठीक है। अब हम दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे साइमल्टेनियसली, चाहे आप डिजिटल इंटरव्यू दे रहे हैं स्काइप के ऊपर और सम प्लेटफॉर्म्स लाइक ज़ूम, या आप वहां बैठ के दे रहे हैं। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड दिस इज सो इजी क्वेश्चन, एंड आई हैव सीन कैंडिडेट्स दैट दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। टेल मी अबाउट, अपने बारे में बताऊं,
अच्छा, मेरा नाम वकार है और मैंने सीए किया हुआ है। मतलब यू एक्चुअली फील अनॉयड कि यार व्हाट आर यू डूइंग, और सिंपली यू से व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन। मतलब तुम्हें कम से कम अगर अपने बारे में बताने के लिए सोचना पड़ रहा है, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू परफॉर्मिंग गुड एट योर जॉब। तो ये जवाब आपने पहले से सोच के जाना है, दैट व्हाट डू आई हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क मी, सो यू कैन, अच्छा इसमें भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो कई बार वो आपकी सीवी से स्किम कर जाते हैं और आपके सीवी के बारे में पूछा और फिर कहते हैं नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके आपने यहाँ काम किया। बस इफ दे स्किम फ्रॉम योर सीवी, so you will not be covering those parts which is covered in your CV. But if they say, all right, tell me about yourself and take us through your CV as well. So how can you do like, as you know, my name is Waqar Manzoor. I have done Chartered Accountancy together with MBA in Banking and Finance. I am working currently at this organization. Previously, I was associated with this and this organization. I love to take challenges. I am a motivated individual who love to deliver on time. Together with that, I love traveling. अगर आपकी job traveling require करती है, it's always good to mention that as well. I love traveling. I am a team worker कि जहाँ पे ये show हो कि mostly organization wants worker who are team worker. तो वहाँ पे ये show हो कि आप team worker भी हैं. I love to meet new people, help other or something like that. But at least think of this question beforehand so that you don't have to think this about this question during the interview. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपसे इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में पूछा है, ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश। अगर आपसे इंटरव्यूअर उर्दू में पूछ रहा है तो आप उर्दू में ही जवाब दे दें कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया हुआ है। आप उसे उस तरह से कॉम्बिनेशन रखें कि जैसा आपने प्रिपेयर किया हुआ हो, अकॉर्डिंगली आप उसे दोनों जबानों में जवाब दे सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपने उधर ही उसी जगह पे आपने फ्लंक किया ना, देखें आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो फर्स्ट 5 to 10 सेकंड्स में बन जाता है। मैक्सिमम पहले मिनट के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, अक्रॉस द टेबल जब हम बैठे हुए होते हैं या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके माइंड में ये बन जाता है कि यार मुझे फर्दर डू आई नीड टू स्क्रीन हिम और आई नीड टू से थैंक यू वेरी मच, वी विल लेट यू नो। तो आपने उस फर्स्ट मिनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनट फॉर यू। यू हैव टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। यू डोंट हैव, और वो सबसे इजी भी है क्योंकि आप उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो कि tell me about yourself, and if you cannot tell something good about yourself, so I think then you need to think over your strategy, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में अपने बारे में बताया और पॉजिटिव बताया। तो अभी तक हमने क्या कवर किया है, सबसे पहला था पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हर पॉइंट पे अप्लाई हुआ। देन हमने एक सीवी अच्छी बनाई, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट और वर्क ऑन इट। अप्लाई हमने जॉब पे किया, हमने टारगेट सेट किया हमें दिन में कितनी बार अप्लाई करना है, एंड वी आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग। हमने इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर किया कि इंटरव्यू के लिए कौन लेगा हमारा इंटरव्यू, कौन सी वेबसाइट हो कि है उसकी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसका नाम मैंने गूगल पे सर्च कर लिया। देन मैंने इंटरव्यू के दिन प्रिपरेशन की कि मैं उधर जाके फ्रेश हो जाऊं, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, मेरे कपड़े कौन से हैं वो पहले से मैं डिसाइड हूं, वो सब चीजें करके पहुंच चुका हूं। अब हम 6 स्टेप पे, हमने जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है तो उसने वहां पे आपको बहुत सी बेसिक सी बातें उसने आपसे पूछी कि फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं, इट इज रिकमेंडेड वो अपने बारे में भी आपको बता देते थोड़ा कि भाई लाइक माय नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस जॉब, तो आप एक कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक अच्छा ही इंटरव्यूअर हो, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू कि आप अच्छे कैंडिडेट हो। यू कैन नॉट चेंज दैट इंटरव्यूअर बट यू कैन मेक योरसेल्फ अ गुड कैंडिडेट। तो आपने क्या इंश्योर किया कि आपने अपने बारे में, जब उसने आपसे पूछा जो कि यूजुअली पूछा जाता है 90% ऑफ केसेस में, आपने अपने बारे में अच्छी लाइंस जो आपने सोची हुई हैं, जो कि ऐसा ना लगे कि आप रट्टा लेके रीड कर रहे हैं, एक आपने वेल प्लान मैनर में आपने बता दी। अब इंटरव्यूअर के पास ऑप्शन है, आइदर वो आपसे सीवी के बारे में चला जाएगा कि आपके सीवी के बारे में पूछ लेगा, अच्छा आपने यहाँ पे किया, यहाँ क्या किया, आप इससे पहले लकी सिमेंट में थे, उधर आपने क्या किया, आप पोल्यूशन में थे, तो आपने वहां पे कितने साल काम किया, कौन कौन सी जॉब्स देखी, या वो आपसे डायरेक्ट टेक्निकल एरिया पे जा सकता है। तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपकी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है या पिप्फा आपने किया हुआ है, तो उस केस में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने क्या क्या पढ़ा, तो वो सारी बातें वो पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो सीवी में लिखा हुआ हो उसका एक एक लफ्ज आपको पता हो। इधर मैं एक आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। When I was giving my initial interview, all right, और उसमें मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा था कि आई हैव एक्वायर्ड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द की एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी कि आपने भाई, और आपको ये लगता है आप 5-6 साल से ऑडिट्स कर रहे हो, आपने डिफरेंट कंपनीज के ऑडिट्स किए हैं और आपको वो चीजें आ गई हैं जो कि की एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती हैं। Throughout my CV, what interviewer asked me
व्हाट आर द की एरियाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, आप जब प्रोडक्शन कंपनी का सोचोगे ना, तो की एरियाज तो सबसे पहले प्रोडक्शन ही आएगा। और आप ये प्रोडक्शन कहोगे तो आप ये कहोगे तुम्हें प्रोडक्शन की क्या तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज है, बिकॉज यू हैव डन सी और एमबीए, तुम यू डू नॉट नो हाउ टू डू प्रोडक्शन। अब जब उसने ये सवाल मुझसे पूछा कि ये एरियाज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई वुड टुडे से उस वक्त मैं इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था, आई गॉट एस्टोनिश्ड लाइक दिस एंड आई वाज लाइक key areas would be, if I am saying like this, key areas would be, that shows कि I am thinking on it, I do not know about my CV as well. तो आपने जो CV में लिखा हुआ अगर आपको था key areas, so you simply say key areas include finance, supply chain, marketing, production, HR, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपको वो जवाब फौरन से आना चाहिए, आपको वो सोचना ना पड़े। इंटरव्यू में दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यूअर को कंप्लीट करने दो सेंटेंस को। आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप उसको कंप्लीट होने से पहले जवाब देना शुरू कर दो, ये बताने के लिए कि आपको आता है। दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स नेगेटिव, बट दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट कि आप कंप्लीट होने के बाद हर क्वेश्चन के बाद बिल्कुल ही सोचो में ना चले जाएं और देन आप फिर उस तरह सोच के जवाब दे रहे हो कि पर्सन से इसके यार अगर ये अपनी सीवी के बारे में ही सोच रहा है तो फिर ये क्या जवाब देगा। आपकी सीवी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है या तो वो उस बारे में डिस्कस करते हैं व्हाट यू हैव डन देयर। अच्छा, अब देखिए इंटरव्यूअर का एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है, तो ही नोज के यार आपने जो किया हुआ हो सकता है वो आपकी बातों में से ही कोई फर्दर क्वेश्चन करेगा और जब देखेगा कि यार आप कह रहे हो आई हैव डन दिस, लेकिन मुझे उस बारे में ही सही आपको नहीं पता, तो डेट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिव। तो आपने जो काम किया हुआ है आप भले रोज करते हो, ट्राई टू रिपीट दैट एज वेल। एक दो दिन जाने से पहले, लाइक मैं आपको बताऊं, जब मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा था फर्म के बाद, तो मैंने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई थी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई थी, मैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ के जाता था कि मुझे पता हो कि मैंने क्या हाईलाइट्स दिए हैं उनके, मुझे पता हो कि बैकग्राउंड क्या था, ताकि जब वो मुझसे अगर किसी भी कंपनी का पूछे कि इस कंपनी में क्या देखा था क्या था, ठीक है, आई वॉन्ट बी compromising confidentiality, but I will be ensuring कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मुझे पता है, जो मेरी लिखी हुई बातें वो मुझे याद हैं। तो आपसे या तो वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में या क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है, आप बताएं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन फर्म और डेफर टैक्स के बारे में एक बिग फोर के पार्टनर ने मुझसे पूछा, तो क्योंकि एग्जाम दिए हुए थोड़ा टाइम हो गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, तो मैं सही जवाब नहीं दे सका और माय इंटरव्यू कॉन्फिडेंस वाज शेकन ऑल टुगेदर। ऑलराइट, तो इनिशियल पार्ट में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सम रिसर्च इसके ऊपर भी करें कि यार हमने पढ़ा क्या था, मैंने जो रिसेंटली पढ़ा था मैं उनको रिवाइज कर लूँ उन बातों को। कुछ जगहों पे इनिशियल स्टेज पे टेस्ट भी लिया जाता है, तो मैं टेस्ट के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करूँ। कॉल आ जाना इस फर्स्ट पार्ट, आप फर्स्ट स्टेज सक्सेस हो गई है आपकी। अब उस कॉल को सक्सेसफुल बनाना इस सेकंड पार्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने उस कंपनी के बारे में तो रिसर्च करनी थी, साथ साथ आपने टेक्निकली भी अपनी चीजों को रिवाइज किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अर्लियर पार्ट ऑफ योर करियर। इंशाल्लाह जब आप सब सीनियर स्टेज पे जाएंगे आप देखेंगे कि बाद में ना इतना ज्यादा टेक्निकल एरियाज को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप अर्लियर स्टेज पे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। दिस इज योर बेस्ट चांस कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक क्रिकेटर को अगर ट्रायल का ऑप्शन मिलता है कि नेशनल टीम में जाने के लिए, तो दिस इज लाइक दैट कि अब आपको ऑप्शन मिला है कि अब आपको ये ट्रायल है, आपको अपना शो करना, आप बेहतरीन है। वहां पे मोर देन 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ, यू हैव टू प्रूव यू आर द बेस्ट। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से यू डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग अनप्लान्ड। ठीक है, तो आपने टेक्निकली भी देख लिया, आपने कंपनी को भी देख लिया। अब उसके अलावा जस्ट थैंक यू, और किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि आप अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस एरियाज में कौन से रिस्क होंगे। तो अगर आपको पता है कि यार ये पोजीशन ऑडिट के लिए, तो मैं देख के जाऊँ कि सप्लाई चेन में क्या रिस्क है, एचआर में क्या रिस्क है, मार्केटिंग में क्या रिस्क है, प्रोडक्शन में क्या रिस्क है, मुझे पता हो। उन रिस्क को कवर करने के लिए कौन कौन से आपको कंट्रोल्स चाहिए होंगे, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ये बातें मुझे पता हो। मैं अगर एचआर में अप्लाई कर रहा हूँ तो एचआर के क्या क्या फंक्शंस हैं, एचआर किस तरह ऑपरेट करता है, एचआर की बातें मैं थोड़ी सी रिसर्च करके जाऊँ। इंटरनेट पे बहुत आसान होता है। अच्छा, सवालात जो अभी आ रहे हैं आई विल बी टेकिंग इन द एंड, सो प्लीज कीप इट एट द मोमेंट। मैं आखिर में सारे सवालात ले रहा हूँ, हम फिर उसको एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पढ़ा और मैं चीज भूल गया। हाँ, कि आप लोग प्रिपेयर किया हुआ है आपने उसके लिए,
और आपको अपनी टेक्निकल साइड को भी पता था, आपको एकेडमिक साइड को भी पता था, आपको एचआर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको एचआर के एरियाज पता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सप्लाई चेन, मार्केटिंग या आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको उस बारे में पता हो कि यार ये ऑपरेट कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन के इंटरनल ऑडिट के लिए लोगों ने अप्लाई किया, व्हेन यू आस्क डू यू नो समथिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट एंड द पर्सन रिप्लाइज हाँ, अच्छे लोग होते हैं इसमें। So you, what do you feel like? You simply say, "Yeah, get out from my room," or मतलब you do not say that to his face, but what you do? Do you think this in your heart? And you simply after 2 minutes you say him, "Thank you very much," and we will let you know. So do some research. इस दौर में जितना आसान है ना रिसर्च करना, मैं कहीं भी बैठा हुआ हूँ, कहीं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। मैं वहां बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, मेरे पास कॉल आ गई है जब इंटरव्यू की, उसके बाद से मैं नॉर्मली भी चीजें पढ़ के अपने आप को अपडेट रखूंगी। यार जहां मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे ये तो पता हो कि उसमें काम क्या होता है। सप्लाई चेन है तो सप्लाई चेन में क्या काम होता है, क्या पीओ बनता है, पीआर बनती है, पीओ बनता है, कोटेशंस लेते हैं, ऑर्डर होता है, रिसीव होता है तो जीआरएन बनती है, एसआरएन बनती है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि मैं इजीली इंटरनेट पे सर्च करके लर्न कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टीच यू ऑल दोस टेक्निकल एरियाज इन दिस 1 hour 30 minutes, बट व्हाट आई कैन टेल यू दैट आपको इस पे रिसर्च करके उस जगह पे जाना है ताकि आपको ये बातें पहले से पता हों। अच्छा, अब हम और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूजुअली पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। जब आपसे स्ट्रेंथ का पूछा जाए इट्स वेरी इजी कि आप स्ट्रेंथ के बारे में बता देते हैं। लेकिन जब आपसे वीकनेसेस का पूछा जाता है ना, तो अब आप वीकनेसेस में ये नहीं कह सकते सिंपली कि आई एम लेजी, लेकिन आपको झूठ भी नहीं बोलना। ऑलराइट, सो यू हैव टू प्लान समथिंग which does is true and at the same time does not reflect कि यार ये कैंडिडेट तो बिल्कुल काम कर नहीं है। अगर आप ये कहोगे आई एम लेजी और आई डू नॉट फुलफिल माय प्रॉमिस, तो nobody would be willing to hire you ना। फ्यू मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ, बहुत सारे आप आंसर्स और खुद से सोचें अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, यू कैन सिंपली से कि आई कैन नॉट डू वर्क विदाउट हैविंग टी, or you can say I am overcommitted sometime and that is why sometime I have to complete my task at the very last moment on the deadline, so this is something I want to improve. You can also say I feel like I need improvement in communication skills and that's why I have joined Toastmasters club or any such club like that where you can improve your communication skills. So also show that here if you are weak at something, you are doing effort to improve yourself. All right, so tell something like that. So that's very important. सिमिलरली जब आपसे ये पूछा जाता है काफी बार कि यार टेल मी द योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑलराइट, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो टेल मी ऑफ समथिंग यू आर प्राउड ऑफ। अब आपसे जब ये पूछा गया और आप सोच में चले गए उस इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू को वेयर को क्या सेंस आंसर गया कि यार इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा भी नहीं किया या इसको पता कि जिसपे ये प्राउड हो। तो ये वो बेसिक सवालात हैं जो आपको पता हो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत अच्छी जीपीए आई है, कभी आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था उसमें पार्टिसिपेशन थी, आपकी जॉब पे आपने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की जिसपे आपके बॉस ने आपको एक्नॉलेज किया, आपने अदर देन जॉब और वो आपकी कोई ऐसी लाइफ में है, अगर आप अर्ली करियर में हैं तो आपकी कोई लाइफ में कोई ऐसी बात, बट डू थिंक ऑफ दैट कि यार अगर मैं क्या अचीवमेंट है कि जिसको मैं बता सकूं। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एज वेल है। फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे आप क्या कहते हो कि यार इस सिचुएशन में मुझे चैलेंज आया, फिर मैंने क्या एक्शन किया और क्या रिजल्ट आया, CAR स्ट्रेटेजी। सिमिलरली आप कई बार कहते हो स्टार स्ट्रेटेजी कि क्या सिचुएशन थी, उस पर क्या आपको टास्क मिला, उस पर आपने क्या एक्शन किया और क्या रिजल्ट आया। सो व्हाट यू एक्चुअली टेल, अगर आप कोई भी मूवी देखोगे ना, हॉलीवुड मिशन इम्पॉसिबल देख लो या फाइंड आउट एनी मूवी जहां भी थोड़ा सा एक्शन होगा, वो किस तरह से मूवी चलती है। शुरू में दिखाएंगे कि हीरो जो है कैरेक्टर बिल्ट हो रहा है और मुश्किलें आ रही है और हीरो जो है जैसे हारेगा। फिर एकदम ये होगा कि हीरो बिल्कुल ही मुश्किलों में फंस गया और देन वो ही कैन ओवरकम दैट। तो सिमिलरली आपको इंटरव्यू में भी ना प्लान योर आंसर इन सच अ वे कि यार ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी, ऐसी कौन सी डिफिकल्टी आई थी आपकी लाइफ में जो कि सच हो बात, ताकि जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप उसके जवाब दे सकें और उस पर आपने उस सिचुएशन में किस तरह से काम किया और किस तरह से कामयाबी हासिल की एंड हाउ कैन दैट कामयाबी कैन शो कि यार यू कैन अचीव दिस कामयाबी इन योर जॉब एज वेल। ऑलराइट, तो इसके बारे में सोचें। स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच लिया आपने, लिमिटेशन के बारे में सोच लिया आपने, ऐसी चीजों के बारे में, बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में सोच लिया। वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? अब ये अगेन ये वो सवाल है कि जो इसका आपके पास जवाब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। अगर आप इसमें आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को अमेंड कर लेते हैं, मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जब हम अर्लियर पार्ट ऑफ करियर में या
जहाँ भी जॉब मिलेगी हम तो कर लेंगे, चाहे फाइनेंस हो, सप्लाई चेन हो, ऑडिट हो, एचआर हो, जो भी हो. But when you are applying for a particular, if you have decided that you will get job here only, तो आप ये बता दें यही, और obviously आप उसी जगह जाके इंटरव्यू दे रहे होंगे. But if you are not decided yet and you are like I can go to any of these departments, आप जिस जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, plan something like that कि I would like, for example, अगर internal audit में है तो I would like to see myself in next 5 years. I would like to see that I have proved myself as a good employee of this organization, and maybe I am promoted to a bigger role, a bigger challenge. So something like that. But आप ऐसे आंसर्स के लिए क्या करेंगे? There can be several questions like that, और जिसके लिए हमारे पास टाइम शॉर्ट हो जाएगा. So what I would recommend, do search it, do Google it कि tricky questions in interview, और उसमें आपको एक complete list of more than 100 questions मिल जाएंगे कि उस केस में आप क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है. But do research that. In this session, I can only highlight you that what are the areas to do research. Then with positive attitude, which we have discussed in the beginning, कि जो हर जगह अप्लाई होगा कि मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग इंटरव्यू भी, मैं इस सेशन में भी, मैं अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए भी, तब मैं वो चीजें जाके आई कैन अचीव दैट. ऑलराइट, तो डू रिसर्च एट. वन मोर थिंग that interviewer usually ask that do you want to ask anything. So that's the very important part of the interview कि जब वो आपसे पूछ रहा है, so what should you ask and should you ask or not. It's very important. I repeat, it's very important कि जब आपसे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दे तो आप उससे पूछें. और वन मोर थिंग, अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है पानी के लिए और चाय के लिए, दैट वुड यू लाइक टू टेक टी और वाटर, सो इट्स गुड कि अगर आपको प्यास लग रही है, आस्क फॉर वाटर. समटाइम यू कैन आस्क फॉर टी एज वेल, दैट्स फाइन. बट ऐसा ना हो, एनवायरनमेंट को आप देखते हुए, डोंट हेजिटेट इफ यू फील लाइक हैविंग टी और वाटर. ऑलराइट, सो इट्स फाइन टू आस्क दैट until unless कि आपको उसके पूछने के तरीके से पता चल जाए कि यार वो मंगवाना नहीं चाह रहा, वो आपसे सिंपली पूछ रहा है चाय तो नहीं लेंगे ना, you should get that. But other than that, it's fine if you want to have tea, if you want to have water, just have water. It's good to ask for water because जैसे अभी आपने सेशन में देखा, मैंने 2 गिलास अपने साथ रखे हुए थे, जो कि मैं खत्म कर चुका हूँ और दूसरा खत्म होने वाला है. जब आप इंटरव्यू अगर आपका लंबा होता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 20-25 मिनट का, तो आप जब कंटिन्यूसली बोल रहे होगे तो आपको प्यास लगेगी. सो अब आप अगर उस वक्त आप शायद बोलते हुए शर्माओगे कि when they do not ask you and you ask for can you have water for me, so it's good to have the water in the beginning, so that if you feel thirsty during the meeting, just have a sip in the beginning, and if you feel thirsty during the meeting, you can have another glass as well. All right, so अब जब उसने आपसे पूछा है कि do you want to ask anything, there are many questions which you can ask as per the situation. First of all, for example, it would be great अगर आपका ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, if you can explain me the roles and the expectation from me in this job. तो क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है? एक, उससे भी लगेगा कि यार यू आर इंटरेस्टेड. सेकेंडली कि आपको भी बेहतर चांस मिलेगा उस जॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा क्या काम होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या चीजें होंगी, सो दैट अगर आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आते हो, तो आप फर्स्ट इंटरव्यू में आपने पूछ लिया, आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो देन यू नो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब एंड यू कैन प्लान बेटर फॉर दैट पोजीशन एज वेल. ऑलराइट, तो आप ये पूछ सकते हो. अगर आप एमटीयू पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे, तो यू कैन आल्सो आस्क देम के फॉर एग्जांपल दैट व्हाट आर द करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर मी इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन आई, आर देयर ट्रेनिंग्स अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज, क्योंकि यूजुअली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स भी देती है. तो आप ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आप कंपनी के बारे में फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं, आर देयर एनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन द कंपनी, और ये ऑपरेशंस में बढ़ रहे हैं. आप ये पूछ सकते हैं, one more thing, that when should I expect a response for next interview or for next procedure, so something like that. But अच्छा, इसमें ये भी नहीं करना आपने कि बहुत ही ज्यादा पूछने लग जाओ कि आपने, उसने पूछा do you want to ask anything and you start asking 10 or dozen of questions. 1, 2 or 3 questions are fine, 2 is good I would say. और लेकिन do ask some question which are genuine question. ठीक है, हमेशा ये genuine question बहुत होता है कि what would be expected from me in this job. All right, तो वो भी आपको पता हो कि यार आपके लिए क्या है, ताकि अगर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, यू नो दैट. आफ्टर द इंटरव्यू यू सिंपली, अगर पेंडेमिक नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं है, यू शेक हैंड एंड लीव फॉर द रूम, फ्रॉम द रूम. अगर वो है तो भी उस केस में टेल देम दैट थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड आई होप वी वुड बी मीटिंग सून अगेन, समथिंग लाइक दैट. अगर ऑनलाइन भी है तो उस केस में भी आप उन्हें बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, और समथिंग लाइक दैट, दैट शो द पॉजिटिव एटीट्यूड इन योरसेल्फ. One more very important thing, what I have seen in interview as well, the interviewee
is telling or backbiting about his previous employer or previous boss. Never do that. देखो, अगर if someone is coming to me from Lucky Cement and he's saying that in Lucky Cement or any organization for that matter, there were these issues, what would I be thinking taking his interview? That if he is saying these things about his previous employer, he would be saying similar thing about me to someone else as well. All right. And if he has so many graduates in his previous job, he will have similar issue with me as well. And because I do not know that candidate, maybe uske issues genuine ho, maybe aapke problems real ho, but this will decrease your chance of being selected by telling that okay, these are the issues. Always highlight the positive aspects. All right. So आपने झूठ नहीं बोलना, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट अगर वो आपसे पूछेगा कोई ऐसी बात जिसका आंसर नेगेटिव ही है, देन यू विल टेल इट. बट अगर वो आपसे नहीं पूछता या आपसे ऐसी बात है जिसको हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, कीप इट साइलेंट. ऑलराइट, डोंट टेल इट बिफोर हैंड कि यार ये सारे मसाइल हैं. इंटरव्यू हो गया, ठीक है, आप इंटरव्यू से रूम से आ गए हैं, फिर आपने क्या करना है कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये भी नहीं करना कि जिस दिन इंटरव्यू से आए ना, मैं उसी दिन ही उस एचआर को कॉल करने लग गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, क्या होगा. आपने थोड़ा गैप देना है, वरना इंटरव्यूअर और एचआर कैन गेट इरिटेटेड. साइमल्टेनियसली अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वीक हो गया, 2 वीक हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया, देन इट्स फाइन टू आस्क द एचआर पर्सनल कि I gave interview on this date, and if you can please update me, that would be great, so that they also know that you are interested for the job, and if they are planning, they can let you know about further procedure, or maybe they can call you for another interview. And other thing very important is, then don't be disheartened if you are not selected for the job. This is similar to your qualification. If you fail, you always learn. तो आपने तो इंटरव्यू देना ही इस पर्सपेक्टिव से है, अपनी पूरी एफर्ट से कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट. ऑलराइट. तो अगर आपको नहीं बुलाया जाता, कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, आप तीसरी जगह अप्लाई करेंगे. लाइक वी से ट्राई अंटिल यू फ्लाई. ऑलराइट. जब स्पाइडर ने हिम्मत नहीं हारी, 10 बार नीचे गिरी और वो वापस जाके चढ़ गई फाइनली, सो हाउ कैन वी बीइंग अशरफुल मखलूकात हम ये मान लें कि दैट वी कैन नॉट अचीव दिस. ऑलराइट. तो आपने कंटिन्यूसली एफर्ट रखनी है. आपने रिकरेंस, द 10th स्टेप व्हिच यू विल बी डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि ये सारे स्टेप्स दोबारा से करने हैं. आई रिपीट कि ये 1 आवर सेशन था. आई ट्राई टू मेक इट वेरी कंसाइज. 30 मिनट्स के बाद हमारे पास हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन आंसर सेशन हम कवर कर रहे होंगे. जिन लोगों के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट राइटिंग देम. आई विल बी रीडिंग आउट इन अ व्हाइल. आप डायरेक्टली मुझे भी भेज सकते हैं, सिर्फ आप चाहें तो टू एवरीवन, व्हाटएवर यू लाइक, यू कैन डू दैट. हम सिंपली इसको रिवाइज करेंगे 10 स्टेप से, और इनके ऊपर अगर आप एफर्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल हैव मच मोर चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. थोड़ी आपको एफर्ट खुद करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, बट यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड इफ यू डू दैट. पॉजिटिव एटीट्यूड था. पॉजिटिव एटीट्यूड आपके हमेशा रहना चाहिए, 10 के 10 स्टेप्स में भी, ड्यूरिंग दिस सेशन भी, ड्यूरिंग योर लाइफ भी, ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन भी. सीवी कंटिन्यूसली आपने अपडेट करते रहना है, कि जहाँ पे आप सीवी को अपडेट कर रहे हैं और आप उसमें ये कहते हैं कि आपने अपनी सीवी को स्टैंड आउट करना है फ्रॉम अदर. आस्क अदर्स टू रिव्यू योर सीवी एज वेल. ऑलराइट. आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना है बिफोर द जॉब, ऑन द डे ऑफ जॉब, ड्यूरिंग द इंटरव्यू. आपने अपने बारे में अच्छा प्लान करना है. आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू जो कि क्या बोलना है, बेसिक क्वेश्चंस आपने सर्च करके जाने हैं. टेक्निकल हो सकता है, आपको बारे में जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सीवी से रिलेटेड हो सकता है. एंड में आपसे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इंटरव्यू के बाद क्या होना, और रिकरेंस. क्वेश्चंस काफी सारे आने लग गए हैं, तो मैं साथ साथ वो भी रीड करता जाता हूँ और हम उससे भी कवर करते हैं. वकार, यस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ गए उनके भी आंसर, और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो डिजिटल हैंड भी रेज कर सकता है, तो हम उसको अनम्यूट कर लेंगे. और इसी तरह जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, वो फेसबुक वीडियो जो लाइव चल रही है तत्फा के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. तैयब, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन एंड सो दैट आई कैन आंसर. And if anyone of you want to ask the question, just raise your hand. We will unmute your mic and video as well, and you can ask whatever you want. A question आया है, is it necessary to put picture on CV? It's not necessary, but it's always good to have that, because the employer many times wants to see whom am I
calling for the interview. So I again say it's not necessary. If you are uncomfortable, you can remove your picture from the CV. But it's always good to have some decent photograph, like where you sell yourself for that job. So it's good to have the picture. So I will recommend, but again, if you feel uncomfortable, you can remove it. There was one raised hand as well from, I think, Tanveer. So Tayyab, if you can unmute his mic, that would be great. I don't see any raised hands. All right, let me see. So let's go to next question, and if you can. Does CV format matter? It's matter a lot. मतलब अगर मैं इसे कहूँ कि it matter, that would be understatement. It matters a lot. आपकी CV is something जो हमने अभी भी डिस्कस किया सेशन के शुरू में भी, कि that actually sells you. तो अब आपका फॉर्मेट क्या हो सकता है? There can be many formats, ठीक है? हमने यूजुअली इनिशियली आपका नेम, कॉन्टैक्ट, आपकी ईमेल एड्रेस, आपकी पिक्चर टॉप पे आ गई, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है। अगेन आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी है दैट मैटर्स अ लॉट। जो चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपकी सबसे हाईलाइटेड है, जो चीज आपको लगती है कि यार दिस इज द थिंग विच स्टैंड्स मी आउट, उसको सबसे पहले रखें। इफ इट्स एक्सपीरियंस, वो सबसे ऊपर हो। इफ इट्स योर एजुकेशन, वो सबसे ऊपर हो। अगर आपकी जीपीए, आपने कभी कोई प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग किया है, आपने कोई आउटस्टैंडिंग चीज पिफा में अचीव की है, उसको सबसे ऊपर लाएं। नीचे कोशिश करें, अब आपको फॉर्मेट में एक पेज भी आ जाएगा, तो एक पेज के अंदर कवर हो रही हो, नीचे आपका बायोडाटा आ जाए, आपकी हॉबीज आ जाए, गुड ट्रेनिंग आपने जो अपने करियर में ली हुई है, समथिंग आउटस्टैंडिंग जो आपने किया हुआ है, एनी अदर थिंग जो कि आपके अंदर हाईलाइट आप करना चाहें, तो वो एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए यार जिसको आप ना खुद देखें दोबारा से, या किसी और को दिखाएं, और उसको देख के आपका पढ़ने का भी दिल चाहे, समझ भी आए। मैं उससे एक नजर में बोलूँ 10 से 15 सेकंड में मुझे पता चल जाए यार इस बंदे की सीवी अच्छी है, लेट्स रीड इट इन डिटेल। या फिर मैं ये कह लूँ यार ये बंदे की सीवी मुझे समझ आ गई, लेट्स कॉल इट। इन कंट्रास्ट अगर मैं देखता हूँ यार सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक है, सीवी में फॉर्मेटिंग आगे पीछे के, कोई लाइन पहले शुरू हो रही है, कोई लाइन बाद में शुरू हो रही है, सीवी में बॉक्सेस सही तरह समझ में नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि मुझे यही होगा कि यार अगर ये सीवी की फॉर्मेटिंग सही नहीं की हुई, ही इज नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ इट्स सीवी, सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवी की फॉर्मेटिंग सही हो, उस पर आप टाइम स्पेंड करें, वो अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एक पेज है और उसको, लेट मी शो यू, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेज है और आप इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं, तो दो हिस्सों में ऐसा ना हो कि आप कहीं पे आके इधर चले गए, फिर आप इधर आके इधर चले गए। वो कोशिश करें वो भी लाइन स्ट्रेट हो, तो फॉर्मेटिंग ऐसी हो जो मेरी आंखों को अच्छी लगे, आई एंजॉय दैट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर एक चीज मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी अभी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कि किस तरह या क्या आंसर देना चाहिए, तो इट इज ऑल कम्युनिकेशन। तो आपने अभी बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए आप मेंबर हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब के, तो क्या इंटरव्यू के लिए भी टोस्ट मास्टर्स क्लब हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखिए, जब आप क्या होता है कि टोस्ट मास्टर्स क्लब क्या है, लेट मी हेल्प मी टेल यू दैट एज वेल। टोस्ट मास्टर इज द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो कराची के अंदर बहुत सारे टोस्ट मास्टर्स क्लब हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। आप उसमें आजकल पेंडेमिक की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, तो आप वर्चुअल मीटिंग में किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल शेयर माय ईमेल एड्रेस एंड सेल फोन नंबर एज वेल। इफ यू कैन वांट टू आस्क मी दैट, आई विल शेयर दैट एज वेल। I'm just sharing my email address and my cell phone number for WhatsApp as well. Please don't call me if you want to ask something, just WhatsApp me. आप उसके ऊपर जाके आप क्या करोगे कि आप मीटिंग में आपसे, इसके अंदर 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन दैट इज इम्प्रॉम्प्टू सेशन, सेकंड सेशन इज प्रिपेयर्ड स्पीच एंड थर्ड सेशन इज इवैल्यूएशन। जब आप इम्प्रॉम्प्टू सेशन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली वो प्रैक्टिस हो रही है कि यार जब मुझसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आपको एक सवाल पूछा जाएगा और आपको फौरन उसके ऊपर जवाब देना होगा। तो आपको इंटरव्यू में भी क्या होता है कि कोई भी सवाल अचानक से आ जाता है, तो जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे होगे हर वीक वो पोस्ट मास्टर्स की मीटिंग अटेंड करके, so there are much more chances कि आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपेयर्ड स्पीच, तो प्रिपेयर्ड स्पीच आपको हेल्प करेगी, लाइक उसमें पहली स्पीच ही होती है आइस ब्रेकर, तो आप अपने बारे में बताते हो, तो आप अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता सकोगे अगर आपने उसकी स्पीचेस प्रिपेयर की हुई होंगी। एंड देन द पार्ट इज इवैल्यूएशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जहाँ पे आपको एक्चुअली पता चलता है कि आपने क्या चीज अच्छी की और क्या चीज आप फर्दर अच्छी कर सकते हैं।
और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एरिया होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को फर्दर पॉलिश कर सकेंगे। So I recommend all of you, if you are not part of that organization, be part of any Toastmasters club. There is CA Toastmasters Club Karachi, Lahore as well, CA Toastmasters Club, Islamabad, Peshawar. Then there is Express Toastmaster Club, Karachi Toastmaster Club. There are so many Toastmaster clubs. So simply go on Google, write toastmaster.org, and you can find so many clubs in your area. Do attend its meeting. You can attend its meeting for free as a guest, and it's very easy now. You can attend from your home as well. So do attend its meeting. It will help you a lot for your interviews as well. जी जाइए. There was a raise of hand again. Galaxy A50 का रेंज रेज है. If you can unmute his mic and video. Yes. Unmute कर दिया है. अनम्यूट किया था मगर वो सवाल उसमें नहीं पूछा. एक सवाल आया हुआ है कि if they ask tell us about yourself, can we describe our family background, study, or directly start job description? All right. So I tell you, like, asking about family background is illegal in many countries. In Pakistan, it's not, and we usually ask that as well. But what I would say, don't tell much detail about your family background if the interviewer has not asked for it. There are two types of questions. First question can be like, tell me about yourself, your education, your experience, and your family background. If the interviewer asks like this, in an environment like Pakistan, maybe you can tell about your family in the end, a brief discussion about that. But if the interviewer said, tell me about yourself, so do not go that what your siblings do, what your father do, what your mothers do, because interviewer may think like, yeah, I want to know about you. I don't want to know about your family and everyone in your family. So try to keep it yourself. आप उसमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपनी अचीवमेंट्स बताएं कि मैंने जिंदगी में क्या किया. उन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट को सुन के लगे दैट दिस इज द बेस्ट कैंडिडेट. तो आपने वो सारी चीजें प्रिपेयर करनी है. आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बताएंगे. आप अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बता सकते हैं जो अच्छी हॉबीज आपकी हैं. आप अगर ट्रैवलिंग पसंद कर सकते हैं तो आप वो बता सकते हैं. तो टेल दोस पॉजिटिव एक्सपेक्ट जिसको सुन के आप इसको डिस्कस करें. आप जब इंटरव्यू आपका है ना, तो उससे पहले आप कोशिश करें किसी दोस्त को वीडियो कॉल कर लिए, किसी घर वाले के साथ आप बैठ गए और उससे आप ये जवाब बोल के देखिए कि कैसा लग रहा है और उस जवाब को फर्दर इम्प्रूव करें. यस. Are techniques you told are also beneficial for promotional interview? देखिए, टेक्निक्स यूज हो सकती हैं किसी भी चीज के लिए. तो अगेन आपको ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस टेक्निक्स आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर, आई वुड से कि इस पार्ट के लिए कि इंटरव्यू के लिए. आप इसको अपनी लाइफ में किसी भी जगह ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग एनीथिंग आप इसको यूज कर सकते हैं. तो उसमें आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू. यू नीड टू रिसर्च ऑन दैट. ओके. एक सवाल आया है, प्रोफेशनल सीवी किस तरह तैयार करें? Google it. Google, you will find hundreds and thousands of formats from it. Then आप उसको अपने आप से अमेंड करें. देखिए, अगर मैं आपसे अपनी सीवी फॉर एग्जांपल शेयर कर दूं, या इफ आई शेयर सम अदर सीवीज एज वेल, वो हमेशा अगर हर बंदा उसको कॉपी करने लग जाएगा ना, तो वो ये क्या होगा, वो हर बंदा सिर्फ यही होगा कि सेम सीवी है. तो ट्राई टू मेक समथिंग यूनिक. और प्रोफेशनल सीवी ऐसी है कि जिसमें आप कोई रंगीन बहुत ज्यादा रंग ना ले आए कि मैं लाल पीले नीले रंग बहुत ज्यादा ले आया हूँ. प्रोफेशनल, उसके अंदर सोबर कलर्स हो अगर मैंने यूज किए हुए, एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड हो, उसके अंदर मेरी बातें कवर हो रही हो कि मेरे एजुकेशन क्या है, मेरी एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी बातें. सो दैट्स अ प्रोफेशनल सीवी. ओके. प्लीज एडवाइस ड्रेस कोड. ड्रेस कोड हमने कवर किया भी था. मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. फॉर मेल एंड फीमेल एज वेल, आप कलर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा डार्क, या जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ट्राई अवॉइडिंग दैट कलर. ड्रेस फॉर्मल अगर मेल्स के लिए आप, इट्स बेटर अगर आप सूट कर सकते हैं, सो इट्स गुड टू हैव सूट. इफ नॉट सूट, a good formal shirt and formal pant with polished shoes. शूज में देखता हूँ कि पॉलिश नहीं होता. आप इंटरव्यू कई बार ये भी होता है, ठीक है आप पार्किंग से आ रहे हैं, वहां पे आपके शूज खराब हो गए, बट योर शूज शुड बी पॉलिश. शर्ट एक लाइट कलर की हो, यूजुअली व्हाइट कलर इज रिकमेंडेड. आई लव द व्हाइट कलर. बट उसके अलावा फॉर एग्जांपल लाइट आप ब्लू कलर ले सकते हैं, आप लाइट ग्रे कलर ले सकते हैं, बट योर कलर शुड बी लाइट. टाई इज ऑप्शनल, बट अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टाई पहनी जाती है, तो मस्ट वियर टाई एज वेल.
फॉर फीमेल एज वेल के अवॉइड हाई हील्स, बहुत ज़्यादा हाई हील्स हो, बहुत हैवी परफ्यूम हो, तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड. उसके अलावा आप शलवार कमीज और वट एवर फॉर्मल ड्रेस यू प्रीफर यू कैन वेयर दैट. For female, for male, it's better to have a suit and dress code and pant shirt. Yes. ओके, एक सवाल आया हुआ है कि जो रिपीटेटिवली एक सवाल पूछा जाता है उसके हवाले से कि उसका आंसर किस तरह दिया जाए. वेयर विल यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? We also covered that as well. Like when I said कि where do you see yourself in 5 years? So आपने इस आंसर को पहले से प्रिपेयर करके जाना है. अगर आप देख रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन नॉट से कि यार मैं फाइनेंस फंक्शन का हेड होना चाहूंगा. यू कैन नॉट से कि मैं एक एंटरप्रेन्योर होना चाहूंगा. व्हाट यू कैन से कि आप उस जॉब को देखते हुए और बाकी आप सोचो भी व्हाट डू यू वांट टू बी. लाइक इफ आई से सो आई वुड लाइक टू आफ्टर 5 years आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन योर ऑर्गेनाइजेशन प्रूविंग माई स्किल्स, and maybe then I may be given a bigger role, bigger challenge after proving my skills, and I would be looking after that job. So something like that कि आप जहाँ पे आप ये बताओ कि यार मैं अपने आप को चाहूंगा 5 साल में अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ, एक बिगर रोल, एक बिगर चैलेंज के साथ मैं उस जगह पे मौजूद हूँ. Yes. Why do you want this job and salary expectation? Please repeat it. Why do you want this job and salary expectation? Why do you want this job हम पहले कवर करते हैं, देन हम कवर करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन में. देखिए, वाई डू यू वांट दिस जॉब पे ना आपको थोड़ी रिसर्च करके जानी है और आपको अकॉर्डिंगली सेल करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिसका आपको पता है कल्चर बहुत अच्छा है, आपने इसकी रिसर्च की हुई है, तो आप ये बोलोगे कि यार दिस हैज ऑलवेज बीन माय ड्रीम जॉब, ऑलराइट, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर इट, एंड आई नो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली अगर वाई डू वी अपना वाई डू यू वांट दिस जॉब, आपको सेक्टर अगर पसंद है, फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, वट एवर द सेक्टर भी, तो आप उस सेक्टर की वजह से बोल सकते हो, आप उस कंपनी के नाम की वजह से बोल सकते हो, आप उस डिपार्टमेंट की वजह से बोल सकते हो. सो यू हैव टू टेल कि व्हाई डू यू एक्चुअली वांट दैट जॉब, ऑलराइट, बट डोंट से कि आई वांट दिस जॉब बिकॉज आई जस्ट नीड अ जॉब, ऑलराइट. सो डू सम रिसर्च अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल. Then what are your salary expectation? तो early part of career में I would say कि always go for good organization rather than for good money in comparison, I would say, because there is a lot of learning in good organization and then eventually you can earn much more, but that's going to be your personal choice. Salary के बारे में आप try to not talk about salary too early. देखिए, if the employer wants you then he can flexible with the salary as well, all right. Then if he give you offer you can say okay, all right, if this can be this much so it would be good, something like that as well. But अगर वो आपसे specifically पूछता है so you can say that I expect a reasonable offer and like I would be glad with that. Try not to bring the salary part too early. But अगर वो बार बार insist करता है तो फिर क्या होता है कि अगर if you are currently working somewhere you tell that I am earning this much and I would like this much increase for my current salary, like 30% or 40%, whatever it be. If you are currently not working, you can say that I know my colleagues are working for this much in this organization, so I expect somewhere like this. But try to avoid that salary part too early in your interview, especially never ask for salary. That's very wrong when in the first interview you come and in the end or in the mid you are asking how much salary will you be giving. So it shows that you non-serious attitude from you. So try not to bring that too early. और अगर वो आपसे पूछते हैं try to avoid that, but still they ask so you can give the answer in such a way कि या तो मेरे colleagues जो fresh है मेरे साथ वो इस position पे इतने पे या market what I have searched, तो ये I would expect a similar from you. और अगर आपकी कोई पुरानी डिटेल है तो आप उस बारे में बता देंगे. तैयब, there was a hand raise as well, I think Ariba Rao. Yes, Ariba Rao, मैंने unmute कर लिया है. Yeah. Sir, you were saying that when you were being asked about your introduction, you can tell the interviewer about your education and achievements. So don't you think that it's already there in the CV and it won't add much information to the interview? And can we tell them about our weaknesses and strengths in that part? Sure. See, when I told that you can tell about your education and your experience, I told that depends at how does the interviewer ask. There are two type of questions. First question is that interview say, okay, tell me about yourself and take us through your CV as well. All right, so then you take them from your CV as well. Apart from that as well, sometimes they discuss your CV first and then they say, tell me about yourself. So when your CV is already discussed, so you do not tell about your education and experience part, you tell other areas, all right?
But when your CV is not discussed, or you feel like the person has not read your CV and he has just taken the paper up and he said, tell me about yourself and take us from your CV. So it's good that you tell those areas as well, because most of the time I tell you, when you enter the room, that is the moment when interviewer take up your CV and he actually start reading, and then he asks, okay, you tell, and then I will look after it. तो उस पार्ट में अगर आप श्योर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, कि क्या उसने आपकी सीवी देखी, एक तो ये कि उसने आपको कह दिया सीवी भी दिखाओ, देन यू विल डिस्कस इन डिटेल, एक उसने ये आपको सीवी डिस्कस कर ली एंड देन ही टेल यू, आस्क यू टू टेल अबाउट योर सीवी, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप सीवी को स्किप कर देंगे. बट इफ यू आर नॉट श्योर, so it's good to just skim a few details about your CV as well, like I am currently working here, I have worked here and here. फिर आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि आपने उधर फर्दर क्या क्या काम किया, क्या क्या, वो डिटेल नहीं बता रहे होंगे. Similarly, I have done this and this, like I have done CA and MBA in banking and finance. तो आप उसकी भी डिटेल में नहीं जा रहे होंगे कि आपने इसमें क्या किया है. तो अगर आप श्योर नहीं है whether you have gone through your CV or not, so just skim those areas as well and then tell other things. Then you ask, should we be telling our weaknesses? What I have felt, or what I say, try not to bring up your weaknesses too early, or try not to bring up your weaknesses yourself. If the person asks for your weaknesses, then maybe you can identify that, maybe you can tell that, but it's not too good to tell it yourself and then they can also start digging in that. So I will not recommend to tell your weaknesses and telling about yourself. Yes. Why are you leaving your current job? Yeah. That's a very tricky question. And then again, आप इस पे थोड़ी रिसर्च करते हैं और आप इस पे रिसर्च करके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. That depends कि आप कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑलराइट, और आप करंटली किस जगह काम करते हैं. अगर आपको लगता है कि आप एक डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हैं, तो आप उसका ये कह सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर दिस सेक्टर, पावर सेक्टर है या जो भी सेक्टर है. अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, माई कैरियर एस्पिरेशन इज टू वर्क फॉर दिस डिपार्टमेंट. अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिसका आपको कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, देन यू कैन टेल बिकॉज ऑफ दिस कल्चर. समटाइम यू आल्सो से फॉर करियर ग्रोथ, बट उसमें आपको प्रॉब्लम ये होता है कि इंटरव्यूअर से, बिकॉज देन यू विल गेट सम गुड ऑफर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर एंड यू विल आल्सो मूव दैट टू दैट एम्प्लॉयर. अगर आपको एक कंसिडरेबल टाइम हो गया है एक जगह पे, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव, फॉर एग्जांपल, इंटरनल ऑडिट या किसी फंक्शन में, आई हैव बीन हियर फॉर दिस मेनी इयर्स एंड आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई लव वर्किंग हियर, बट नाउ आई वुड लाइक further career growth and maybe work for further this organization, this sector. That's why I am moving. That's from this side. When we could not answer to any question, like you said, Defertex once asked from you, how should we tackle this? That also depends. अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क ऐसा भी आ जाता है, when you are giving interview within Pakistan or when you are giving interview outside Pakistan, to a Pakistani or to a non-Pakistani, like Western side पे थोड़ा सा expectations change हो जाती है. When we talk about Pakistan, तो expect किया जाता है कि आप जो है, आपको पता हो जो जो बातें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, आपकी सीवी में है या आपसे रिलेटेड एरियाज हैं. अगर आपको नहीं पता, अब उसमें डिपेंड करता है कितना नहीं पता. पहली चीज तो ये कि हमें प्रिपेयर करके जाना है, so we have to make sure कि हमें पता हो. बट अगर हमें नहीं पता, then what we will see कि आपको अगर बिल्कुल नहीं पता, excuse कि sir, I have studied this area, I have been through this area, but it's been a long time, I haven't revised it, so I would like to excuse that I am unable to recall at the moment. It's better to excuse rather than saying altogether wrong. All right, तो वो एक important है कि आप उसमें excuse कर लें अगर आपको नहीं पता. अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप बता दें कि I remember this part, but आप इस बारे में श्योर नहीं है, तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें. बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अगर आप गलत बोलते हैं, तो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट नेगेटिव ऑन यू, कि आपको एक चीज का नहीं पता. लाइक मैं, इफ आई टेल यू अबाउट डेफरटेक्स, तो मैंने बिल्कुल ही उल्टा जवाब दे दिया था, एंड द इंटरव्यूअर सेड, फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न दिस, और माय कॉन्फिडेंस वाज शेकन ऑल टुगेदर एट दैट टाइम. सो at that time that interviewer was very good and I finally got called for that as well, कि उन्होंने, then he built up my confidence by asking easy question, but that was my luck that I had a good interviewer. You may not have such luck at that your time. तो आपको अगर नहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, तो टेल के आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई मिस्ड इट, आई विल check it or something like that. So apologize or excuse for that. That's fine. Yes, Tayyab. Why do I hire you? Why do I hire you? That similar question which we have just discussed, like why do you want for this job or why do I hire you? You actually tell the good things about you. ठीक है, जब मैंने आपसे बोला ना tell me about yourself, आपको उस जवाब को इस तरह बनाना है कि उसी जवाब में आप इस बात को भी सेल कर रहे होंगे, why do he hire you?
when you are telling about yourself, and for example you are giving interview for finance, so or for internal or for any organization जहाँ पे आपको ट्रेवलिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपसे लेट सेटिंग का भी एक्सपेक्टेशन होगी, जहाँ से आपसे टीम वर्किंग की भी एक्सपेक्टेशन होगी, जहाँ से आपसे कोरस्पॉन्डेंस की भी एक्सपेक्टेशन होगी, तब आप अपने आंसर में क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मेकिंग द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर लाइक आई लव ट्रैवलिंग, आई एम अ टीम वर्कर, आई एम अ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु लव टू टेक चैलेंजेस। अब आपने उन जवाबात को एक तो वाइड, जब हम कह रहे हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने उधर ही सेल करना शुरू कर दिया। अब उसने फॉर एग्जांपल आपसे ये दोबारा से सवाल पूछ लिया है, तो देन अगेन आप कह सकते हैं बिकॉज आई फील दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु लव टू टेक चैलेंजेस। इस जवाब को उस जॉब के हिसाब से थोड़ा सा अमेंड करो, और ये वो सवालात हैं जो कि मैं आपसे कहूंगा, जिस पे मैंने आपसे कहा था गूगल भी आप करें, तो इनके जवाब पहले से जहन में बनाएं। देन आप वो रटा हुआ आंसर नहीं रिपीट करेंगे, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ फ्रेम ऑफ माइंड इन योर माइंड कि जब वो आपसे पूछेगा कि किस तरह से इसे जवाब देना है, ये आपका जवाब थोड़ा सा वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सब पे। लेकिन आपको ये सेल करना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ टीम वर्कर, आई लव टू ट्रेवल, आई लव टू टेक चैलेंजेस, समथिंग लाइक दैट। उस अकॉर्डिंगली आप उसको सेल करेंगे। यस। Which skills should we improve? System applications, communications, data entry knowledge? ठीक है, if you take us which skills we should improve, we should work on most or all of the skills which whatever relevant to us. But if you ask me which is the most important skill, that is to me is communication skills. आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी देखेंगे, इवन आफ्टर बीइंग हायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आपकी हायरिंग तो डिपेंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ में आपकी कुछ नॉलेज है। आफ्टर बीइंग हायरिंग भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू यू कम्युनिकेट योर एरियाज। आप बहुत अच्छा काम करें, आप बहुत अच्छी तरह से उस पर एफर्ट करें, इफ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सीड। सो इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है कि आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत एफर्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे सेशन करना है, दिस इज नॉट माय फर्स्ट सेशन, आई हैव बीन डूइंग सिमिलर सेशन फिजिकली एज वेल। मैं टोस्ट मास्टर्स का बहुत अरसे से पार्ट हूँ, तो मैं उसमें स्पीचेस एंड डिफरेंट पार्ट हर वीकली बेसिस पे, बल्कि वीक में 2-2 3-3 बार भी दे रहा होता हूँ। But for this session as well, before starting this session, like few hours before, I sat on this seat, I checked the background, I checked everything. I checked, is my voice audible? Is my internet connection is fine? Is every light is fine? So बहुत जरूरी होती है कि आप अपनी communication, अपनी presentation, अपनी उस चीज के ऊपर effort करें। What could I have done कि यार लाइट सही नहीं है रूम में, इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा, बैकग्राउंड पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपके साथ वो चीजें प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उस अपनी बातों में फॉर एग्जांपल आप बार बार कह रहे हैं यू नो वेल वेल, तो दैट शोज नेगेटिव एक्सपेक्ट ना। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करेंगे, यू कैन वर्क ऑन दैट। अगर आप अपनी स्किल में बार बार कह रहे हैं जवाब में आई थिंक वी शुड, अगेन वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, क्योंकि उस वक्त बंदा आपकी टेक्निकल स्किल्स को 30 मिनट्स में नहीं देख सकता, और ड्यूरिंग योर इवन योर वर्क एट ऑफिस एज वेल। तो कम्युनिकेशन स्किल इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द अदर स्किल, data entry skill is, I would say, very basic at the moment. Everyone should know it, or it is expected from everyone. But apart from that, communication skills and your digital skills as well, like big data, these are the things जो कि अब जिस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और दुनिया में expectations बढ़ती जा रही हैं। So try to update yourself. This pandemic is the time, if you are, even if you have job, if you don't have job, this pandemic is a very good opportunity for each one of us to improve our skills. Continuously work on your skills. If I tell you like I have done CA MBA, I am still studying different things because I try or put my utmost effort to keep updating myself. I keep giving trainings as well as straight trainings as well, because it's very important to keep updating yourself. Yes, Tayyab. What is future jobs for accountants? Please tell us about new opportunity in the context of COVID-19. See, when we talk about future job and we say that the paradigm is changing, the world is changing altogether, and there artificial intelligence will be taking human role, and these will be the issue. That's true. I won't say that not true, but if we talk about Pakistan at the moment, we are a bit far from that. Maybe next few years it will happen, but if we talk about what are the jobs for accountant, they are, I think, as usual, like account payable. If we talk about finance functions, so what functions are there? There is a reporting function, there is a budgeting function, there is a payable function, there is a taxation function.
sometimes there is receivable function as well. So वो आपके लिए मौजूद है. Then there is auditor as well. Now ERP implementation is a very big field where accountants are working as well at a very good position. Then we do not need to limit ourselves to only these jobs. I have seen chartered accountant in supply chain as well, like they need accountant in marketing as well. In good organizations, the accountant also go to marketing and HR as well. But you move that into, for example, in HR in campaign man, जहाँ पे compensation we are working, so accountants are there as well. So try to apply to all the jobs. I would say all the jobs. Even if you think it's relevant, it's not okay. If it's altogether not relevant, that's something else. But try to apply for maximum jobs. You will learn a lot from those interviews. And if you get called, you will learn from applying as well. You will keep updating your CV. You will keep updating your email body as well for applying. और ऐसी mistake please नहीं करना कि अगर आप Colgate पे apply कर रहे हो तो और आप लिखो कि I would like to work for HUBCO. तो कोशिश करो कि वो आपकी बॉडी आप हर बार अपडेट लाजमी करो, उसे पढ़ के भेजो. ऐसी भी मिस्टेक होती है कि यार आप अप्लाई कवर लेटर में या आपने अपनी ईमेल की बॉडी में आपने लिखा हुआ कुछ और है और आप अप्लाई किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो. तो देयर आर सो मेनी जॉब्स, जस्ट अप्लाई फॉर इट एंड बी रेडी टू टेक चैलेंजिंग रोल. इवन प्लांट्स एज वेल, देयर इन प्लांट के अंदर भी अकाउंटिंग सेक्शंस होते हैं जिनमें जरूरत होती है. तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अकाउंटेंट्स एट द मोमेंट, आई वुड से. Yes. And entrepreneurship as well, like when you talk about, sorry please, when you talk about so many areas, there is also option of entrepreneurship. You can also go for that. And for that, you also need communication skills to get the client to sell yourself. To sell yourself is similar like interview. So when you have to sell yourself, you need those skills. यहाँ पे आप you need to keep updating that and you can go for entrepreneurship as well. Yes, Tayyab. टाइम बहुत कम रह गया है तो बाकी दो के जवाब हम देंगे. एक सवाल आया हुआ है. Take last few questions and then I can maybe share my email address. If anyone want to ask any question, they can simply email me, and I would love to respond to that question. And if there are many questions, maybe we can have one more session for that as well, separate session. So let's take last few questions, whatever you like. अगर CV में गैप आ जाए फिर क्या करें, जैसे 1 या 2 साल का गैप आ जाए? देखें, गैप आ गया है उसे आप मेंशन करेंगे. This is not right, I would say, but being employer, this become challenging when you find a job with some gap in your CV. But it's not your, मतलब if अब gap हो गया ना, एक तो ये था कि आप gap नहीं करते. For some reason it was necessary and you had that gap. So you simply mentioned that gap, like you work from here till here in this year, and then you work from here till here in this year, and try to sell that something like, for example, इस दौरान अगर आप बता सकते हैं something like आपने क्या किया, कोई आपने एजुकेशन हासिल कर रहे थे, कोई लर्निंग थी, you can mention that as well. अगर कुछ नहीं था तो आप उससे कह रहे हैं, आप कोशिश करें कि फर्स्ट करें जनवरी या फरवरी 2017 में आपने जॉब छोड़ी और 18 के आपने नवंबर दिसंबर में आपने ज्वाइन की. What you can do without telling like कि भाई आप ये लिखें 2017 में मैंने ये जॉब की, आपकी मंथ ना मेंशन करें, 2018 में मैंने ये शुरू की. बट अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है then you will tell the reason why there was a gap and why there was a gap. So it's fine to have a gap. So I think we can mention that. Yes. What if the organization in which a person is currently working is of bad repute? Does it affect one's chances of landing in a suitable job? Okay. What has happened, and you cannot change that. And you may have difficulty in finding for the job, that's true, correct? That's having said. But how can you make things positive for you, or how can you change the thing? You need to have positive attitude for yourself. If you feel that you are working for an organization who does not have a good repute, that's fine. But try to sell your CV in such a way to highlight the positive areas so that you get the call. And when you get the call, all right, your organization may not have repute, but you can tell that I have been doing this part, and this part I have been very honest and ethical with my own part. And like chances, there may be difficulty, but if you remain positive, if you put your best effort, if you put your full effort with utmost effort, you will definitely get the job. And then maybe if you feel like your organization does not have good repute in your country, maybe you can apply in other countries as well. And because if you move from that job to some other country, they may not know much about the repute of that organization. And then maybe if you want to come back to Pakistan, you can come back as well. So you can do something like as well. You can change the area or location of the job if you feel that that's so difficult. But
keep applying on the positive attitude. If you start thinking that because I work for a bad organization, I cannot get a good job, I will not be able to get a good job, so then you will not get a good job. It's same like the CA papers. When we think that we cannot pass it, you cannot pass it. So you need to work with full question, full effort, and with positive attitude. Trust in yourself, you can do it. It may take longer time than normal. If normal people, if you work for a good organization, maybe you get job in 3 months. If you not work for a good organization with good reputation, maybe you take a year or 6 months. It can take longer time, but always work with full effort. Yes. बस यही क्वेश्चन है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। हमारे पास आपकी फील्ड के रिलेटेड काम नहीं है तो क्या जॉब लीव कर देनी चाहिए? That depends. Okay, I always say never leave a job until you have another job. All right. So never leave the job. So I would not say to leave the job. But if you have another job option, even that job is paying you much less than your current job. ठीक है, आपके पास कोई एक ऑप्शन है जो कि आपकी करंट जॉब से भी कम पे कर रहा है, बट वो रेलिवेंट है, गो फॉर दैट. लाइक आई गिव यू एग्जांपल, मेरे पास एक इंटरनल ऑडिट में ही ACCA came to work. He was a teller in bank. And he was ready to work, willing to work on contract basis for much less amount. So I asked him that why are you leaving your bank teller job, cashier job, which pays you more than what I am paying you as a trainee for 6-month contract? His answer was like, I want to do my relevant job. All right. And his salary was almost slashed by 50%, but he still came. What benefit he had? Subsequently, he got promoted for that position. He got permanent position and he is working for that organization now. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रेलिवेंट देखो, क्योंकि वो टेलर में उस वक्त आप ज्यादा कमा सकते हो बैंक कैशियर में, लेकिन आपका कैरियर जाके स्ट्रक हो सकता है. तो रेलिवेंट जॉब के लिए सर्च करते रहो, जब तक आपके पास नहीं है वो जॉब ना छोड़ो. जैसे ही आपको रेलिवेंट जॉब मिलती है, इवन वो कम पैसे होते हैं, गो फॉर दैट. यू विल लर्न देयर एंड यू विल अर्न मच मोर इन शॉर्ट टाइम. यस सर, दैट्स ऑल. अभी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. आपकी बात में मैं दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि वकार जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा था, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है फोकस एंड अदर दूसरा है बिलीव. एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ है कि वॉट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपेंड. जहाँ पे आपका फोकस होगा वो चीज़ एक्सपेंड होगी. अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी. अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा. सिर्फ बिलीव है, जैसा आप बिलीव करोगे वैसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे. जैसे अगर आपका बिलीफ है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, या पाकिस्तान में तो अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती, या मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं हाई लेवल पे पहुँच सकूँ, इस तरह का अगर बिलीफ होगा तो वैसा ही आप एक्सपीरियंस करोगे और आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. तो आपको पॉजिटिव चीज की तरफ फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव बिलीव्स को अडॉप्ट करना चाहिए. तो वकार, एनीथिंग एल्स you want to share? With that, I think we should end our session. Thank you very much for arranging such a wonderful session. And I hope, और आपके feedback से भी लग रहा है कि like it was a positive session for you to learn. I will end with the same thing, that your attitude, your belief is the most powerful, most one can have most powerful thing. So always have positive attitude. कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, we cannot achieve this, इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. With full positive attitude, put your best efforts. अपनी efforts आप किसके साथ होंगी, positive attitude के साथ consistency हो. Never blame other, कि आप जब तक ये सोचोगे ना यार उसकी वजह से ये नहीं होता, वाकई वो नहीं होगा. Always take care, अगर ठीक है मैं इस जॉब के लिए भी नहीं हुआ, how can I improve myself, how can I be a better वकार, how what things need to be done, और फिर और एफर्ट के साथ में अप्लाई करूँ. इस पेंडेमिक में जॉब फाइंड करना मुश्किल है, दैट्स एग्रीड, बट मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि मैं अप्लाई ही ना करूँ. इस मुश्किल का मतलब ये है कि मैं और ज्यादा एफर्ट के साथ और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करूँ. So with that, I hope that this session has been useful for all of you, and thank you very much for having me here and joining me today. Thank you. Okay, thank you वकार for your valuable time. मैं कराची ब्रांच कमेटी से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत अपना टाइम दिया और एक बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया. अगर पार्टिसिपेंट्स में अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो वकार ने भी अपनी ईमेल शेयर की है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं. आप भी मेल कर सकते हैं
और जो फ्लायर शेयर हुआ था उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको आंसर दे देंगे। और सेशन के बाद पप्पा की तरफ से आपको एक फीडबैक ईमेल भी आ जाएगी, जिसमें आप वो फीडबैक फॉर्म फिल कर लेंगे, तो हमारे लिए और बेहतर होगा कि हम अपने दूसरे जो सेशंस होंगे उसको इम्प्रूव करवा सकूं। अगर आपको कोई और सजेशन हो कि हमें किस टॉपिक पे वेबिनार अरेंज करना चाहिए, तो वो सजेशन भी आप पप्पा को ईमेल कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे वेबिनार कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Few और people हम are asking when will be the session repeated. I think it's live on Facebook page as well, so you can access from that as well. ओके, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।